So hello everyone. So today's lecture we are basically going to talk about the coordinate systems. Okay. So this part is very important for electromagnetics. Okay. This is basically the basic of electromagnetics. Okay. So there are basically three coordinate systems which are there. One is the Cartesian coordinate systems, cylindrical coordinate system, and then spherical coordinate systems. And these are the coordinates of these systems. Okay. So what we will do, we will discuss separately about all these coordinate systems which is there, and we will analyze the position vector, the displacement vector, area vector, and the volume vector of this particular Cartesian coordinate systems. Okay. So first we will talk about the Cartesian coordinate system which is there. So Cartesian coordinate system, the coordinates are x, y, and z. Okay. So what we will do, we will consider a Cartesian coordinate system here. Okay, this is the Cartesian planes. So this is my x-axis, y-axis, and z-axis, and these all three axes are perpendicular to each other. Okay. So now what we will do, we will mark any point P here. Okay, let us suppose this is point P, and it has a coordinate of x, y, and z. Okay, so what are these coordinate means? It can be like any point. Let us suppose P point is 3 comma 4 comma 5. So 3 means in x direction it is 3 units, in 4 means in y direction it is 4, and 5 matlab in z direction it is 5 units. Okay, so now the unit vector along x direction is your I cap, along z direction is k cap, and along y direction it is j cap. Okay, so now what we will do, we will join this origin with this point P, and let us suppose the position of this P is given by the position vector r. Okay, so we have to first define this position vector r. सो हमें इस पोजीशन वेक्टर आर को फाइंड करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके मदद से आप सारे जो वेक्टर्स है उसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so first we will find the position vector of this point P. So position vector we are denoting it by small r. Okay, so now as you all know कि vector is what? Vector is basically magnitude, comprises of magnitude and direction. So vector is equals to magnitude into its direction. Okay, now what is the magnitude of this position vector? It is x along x direction, y along y direction, and z along z direction. So what is the direction of x? I cap, direction of y j cap, and direction of z k cap. So what will be position vector? Position vector r will be x I cap plus y j cap plus z k cap. Okay, so this will be the position vector. So whenever you are giving r equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, so it defines that this x y z are its magnitude, it can be anything, and I j k are its direction. Okay, so this is the position vector which is there. Now we will analyze the second point, we will analyze the displacement vector. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो आपको याद रहेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हमें बहुत बारीकी से इसको याद करना है। ओके, बिकॉज यूजिंग दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू विल डिराइव द एरिया वेक्टर, यू विल डिराइव द वॉल्यूम वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट P है इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं। तो लेट अस सपोज इस पॉइंट P को मैंने डिस्प्लेस करके इस पॉइंट Q पे ला दिया, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस किया। ओके, ये जो पॉइंट P है इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, और इसको मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका आर डैश वेक्टर है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो आर डैश है। तो इसको मैंने डिस्प्लेस किया, तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ये कितना मैंने इसको डिस्प्लेस किया, मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, जिसको हम डीएल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये डीएल मुझे यहाँ से फाइंड करना है। तो डीएल वेक्टर मैं कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले अगर आप बात करो कि इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपने क्या किया, ये जो एक्स वाई जेड था इसको तो हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया, मतलब x में आपने कुछ ऐड कर दिया, y में भी आपने कुछ ऐड कर दिया, और z में भी आपने कुछ ऐड करके इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो है हम ये जो q है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। p के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी पता है x, y, z, और p का पोजीशन वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, x I कैप प्लस y j कैप प्लस में z k कैप, ठीक है। अब आप क्या लिखो? अब आप q के पॉइंट्स लिखो। क्यू के पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक्स को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया? dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को हम dx बोलते हैं।
तो आपने क्या किया, x प्लस डी एक्स, y में आपने क्या कर दिया, प्लस डी एक्स कर दिया, डी वाई कर दिया सॉरी, और z में आपने क्या किया, z में आपने z प्लस डी जेड डिस्प्लेस किया। तो x को आपने dx टाइम्स डिस्प्लेस कर दिया, x को आपने dx टाइम डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, q का आपका कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसके जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r डैश वेक्टर विल बी व्हाट, x प्लस डी एक्स आई कैप प्लस y प्लस डी वाई जे कैप प्लस z प्लस डी जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब आप बेसिकली क्या करोगे, अब आप डीएल वेक्टर फाइंड करोगे। ठीक है, डीएल वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, आप कहाँ गए, आप P से Q आपने डिस्प्लेस किया, सो यू बेसिकली डिस्प्लेस फ्रॉम P टू Q, so finally you are going to Q, right? So what you will do, so dl vector is given by position vector of Q minus position vector of P, so you will do Q minus P, okay, very important। आप P से Q गए तो आप क्या करोगे, Q minus P करोगे। so when you will do Q minus P, I का जो I का कंपोनेंट I से सब्ट्रैक्ट होगा, तो अगर आप x प्लस डी एक्स माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, dx आएगा। y प्लस डी वाई माइनस वाई करोगे तो dy आएगा, और z प्लस डी एक्स माइनस z करोगे तो z z कैंसिल, dz बचेगा। तो फाइनली आपका जो डीएल वेक्टर होगा वो क्या होगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो फाइनली आपका जो डीएल वेक्टर आया वो क्या आ गया, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये फॉर्मूला से मैं आगे जो भी एरिया वेक्टर है, वॉल्यूम वेक्टर है, उसको मैं डिराइव करने वाला हूँ। ये आपको हमेशा याद रखना है। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इसी को डी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म रिमेंबर करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इंटरनली ये हो रहा है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करो कि इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो x को d से मल्टीप्लाई किया, dx हो गया, y को d से, z को d से, तो x डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम थर्ड स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया बेसिकली क्या होता है, एरिया एक हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमें आंसर भी क्या आना चाहिए, आई जे के फॉर्म में आना चाहिए, राइट। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब एरिया का आपने फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आप एरिया का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ याद होगा। हम क्या करते हैं, किसी भी दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया डीए वेक्टर आपको अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, ये डीएल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला था आपको ये याद रखो। तो डीएल वेक्टर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, कि अगर मुझे मान लो डी एरिया वेक्टर अलोंग एक्स अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, अगर मुझे एरिया वेक्टर अलोंग एक्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, तो आप क्या करोगे बेसिकली यहाँ पे एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए आप ए क्रॉस बी करोगे। ठीक है, दो कंपोनेंट्स का क्रॉस करोगे तब आपको क्या आएगा, आंसर एक वेक्टर आएगा। दो कंपोनेंट्स का आप क्रॉस करोगे, आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो ये जो डीएल वेक्टर है इसमें आप क्या करोगे, अगर मैंने ए डीए अलोंग एक्स डायरेक्शन पूछा है तो आप क्या करोगे, एक्स को आप छुपा दो, जो दो दूसरा बच रहा है उसका आपस में क्रॉस करा दो। ठीक है, अगर एक्स के अलोंग फाइंड करना है तो एक्स को छुपा दो, जो दो दूसरा बच रहा है उनका क्रॉस करा दो। तो मैं किसका क्रॉस कराऊंगा, डी वाई जे कैप क्रॉस डी जेड के कैप, इन दोनों का मैंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कैसे होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए एक्स वैक्टर विल बी, तो ये डी वाई डी जेड तो एज इट इज आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के हो जाएगा। अब जे क्रॉस के क्या होता है सर, तो जे क्रॉस के इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक बेसिकली क्या होता है, आई जे और के। ठीक है, आपको क्या करना है, आई जे और के, तो आपको ऐसे क्लॉकवाइज चलना है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। ओके, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस के कर रहे हैं, जे क्रॉस के, तो आंसर क्या होगा, आई। तो डी अलोंग एरिया वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डी वाई डी जेड आई कैप। अब इसका भी मैं अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको एरिया अलोंग एक्स फाइंड करना है
तो आप x वाला जो कंपोनेंट है उसको हटा दो, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज dy dx dz, और इसका जो x का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब लेट अस सपोज मुझे a अलोंग y फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, y को छुपा दूंगा dl वेक्टर में, dx dz, और y का यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप, करेक्ट। और एरिया वेक्टर अलोंग अगर मुझे z डायरेक्शन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, dx dy, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है k कैप। क्लियर है? तो ये तीनों याद रखना है। तो आपको अगर डीएल याद है तो आपको ये भी याद हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी भी दो जो कंपोनेंट्स है उसका क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो डी ए जेड क्या होगा, डी एक्स डी वाई के कैप। तो ये तीनों एरिया वेक्टर्स आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके वॉल्यूम वेक्टर की तरफ, ठीक है। वॉल्यूम वेक्टर बेसिकली क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हम लोग फोर्थ एनालाइज करेंगे वो एनालाइज करेंगे हम लोग वॉल्यूम वेक्टर। अब जो वॉल्यूम वेक्टर होता है इसको डीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपको पता है कि वॉल्यूम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा याद रखना। वॉल्यूम जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्या है, स्केलर। ये एरिया वेक्टर है, इसलिए आपके जो आंसर है उसमें आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है। अब ये जो वॉल्यूम वेक्टर होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वॉल्यूम वेक्टर कैसे फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, सेम डीएल एलिमेंट का आपको इस्तेमाल करना है, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वॉल्यूम में आप क्या करोगे, वॉल्यूम का आपने फॉर्मूला जनरली पढ़ा होगा, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, राइट। तीनों लेंथ्स को आप मल्टीप्लाई करते हो। एरिया में आप क्या करते थे, दो लेंथ के यूज करते थे, वॉल्यूम में क्या करोगे, तीन लेंथ का यूज करोगे। तो वॉल्यूम में आप क्या करोगे, डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों को आप यूज करोगे। एरिया में क्या करते थे, आप किसी दो को यूज करते थे और एक को हाइड करते थे। वॉल्यूम में आप तीनों को यूज करोगे। तीनों को कैसे यूज करेंगे, तो हमें तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें आंसर एक स्केलर मिले। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले जो दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस कराएंगे और उसके आंसर को हम लोग थर्ड वेक्टर के साथ डॉट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि फाइनली हम डॉट कर रहे हैं और डॉट का आंसर स्केलर होता है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करो, dx और dy इन तीनों का आप क्रॉस करा दो। तो dv वेक्टर इज इक्वल्स टू dx आई कैप क्रॉस dy j कैप, और डॉट dz k कैप कर दो। अब आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा dx dy आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, k होता है। तो ये k कैप आ गया, डॉट dz k कैप, ठीक है। अब आप इनका डॉट कर दो, तो के कैप क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो ये हो जाएगा dx dy और dz। तो आपका dv क्या आ गया, dx dy dz आ गया। अब इसका भी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक फाइंड करना है तो आप क्या करो, डीएल एलिमेंट में जो मैग्नीट्यूड्स है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डीवी मिल जाएगा। मतलब dx dy dz को मल्टीप्लाई कर दो, आपको डीवी मिल जाएगा। ओके, सारे मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दो, डीवी मिल जाएगा। और एरिया वेक्टर में आप क्या करते हो, किसी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, और उसको आपको यहाँ पे लिखते हो। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, ये बहुत आगे चल के आपको यूज़ होने वाला है। तो इसका मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला शीट बनाया है जो आपको मिल जाएगा ड्राइव पे मेरे, ओके। इन दिस फॉर्मूला शीट एज यू कैन सी, मैंने सारे जो पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, सारे मैंने लाइन से यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखे हैं। अगर आपको बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है तो आप एरिया और वॉल्यूम वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।